पहिला आहे फर्स्ट वन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये स्लोप पॉईंट फॉर्म पार्ट पाहिजे म्हणून मी दररोज गेलोय झाला तर आज शेवटचा राहील लेक्चर होते आता स्लोप पॉईंट फॉर्म मध्ये आपण पाहिलं स्लोप पॉईंट फॉर्म मध्ये लाईन एक पॉईंट मध्ये पास आहे आणि त्याचा स्लोप माहिती असताना फॉर्म्युला आहे y मायनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1 हा पाहिजे फॉर्म्युला ते सेकंड आपण पाहिला त्याच्यामध्ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सो व्हाट इज इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म very simple one slope intercept formula y is equal to mx plus c पार्ट पहिला फॉर्म्युला आहे त्यानंतर थर्ड वन पाहिला आपण स्लोप इंटरसेप्ट चा फॉर्म त्यानंतर 2 पॉइंट फॉर्म व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म या व्हेरी सिंपल वन 2 पॉइंट फॉर्म मीन्स लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स फॉर्मूला काय आहे y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1 this is the formula 2 point form 2 point form के बाद next formula is something like to be here fourth one that formula is said to be the which one it is said to be the कौन सा formula बोलो double intercept form slope intercept your form के बाद double intercept form what is the formula for that one double intercept form के लिए formula क्या है सबको मालूम है line touching both the axes तो अंतिम नहीं क्या पर fourth one is nothing but double intercept form okay double intercept form so what is the condition here for double intercept form line touching both the axes x-axis as well as y-axis what is the equation here x by a plus y by b is equal to 1 and now last one fifth one is said to be the double intercept form के बाद कौन सा फॉर्म है it is said to be the normal form कल अपन डिराइव केलेला आहे normal form म्हणजे काय सगळ्यांना माहिती normal form what is the formula here x cos alpha plus y sin alpha is equal to small p. So this form is said to be the normal form of the line. Okay. So first one is the slope point form, line passing through one point having slope m. It is said to be the slope intercept form. It is said to be the 2 point form. This one is said to be the double intercept form and it is said to be the normal form of that. So simple one is that. Now we have to proceed to the next part of that one. आता पुढचा पार्ट काय जाऊ आपण पुढचा पार्ट मध्ये काय काय आहे ते बघा तर नेक्स्ट फॉर्म मध्ये याच्यामध्ये आहे तुमच्याकडे जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ठीक आहे हा देखील महत्त्वाचा आहे जनरल फॉर्म ऑफ लाइन तर बघा याचं नाव लक्षात हे फॉर्म सगळ्यांना पार्ट पाहिजे त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म इज सेट टू द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक आहे नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नथिंग बट इट इज अ general form of equation of line general form of an equation of line तर हा महत्त्वाचा बीट आहे शेवटचा बीट याच्यामध्ये जनरल फॉर्म मध्ये साधून एकदम फॉर्म्युले मग संपला तर जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन में क्या है पहले सबसे डेफिनेशन सर्वात पहले इसकी डेफिनेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इक्वेशन कौन से फॉर्म में ये फॉर्म में this one ax plus by plus c equal to 0 comma provided a comma b are not simultaneously equal to 0 such equations are said to be the general equation of line or it is also called as a linear equation in two variables it is also called as a linear equation in two variables are there देखो कोई भी इक्वेशन अगर से ये फॉर्म में रहेगी ax plus by plus c equal to 0 बाद में कंडीशन क्या है a comma b both are not simultaneously equal to 0 मतलब कैसा फॉर एग्जांपल a भी 0 हो गया और b भी 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचा c equal to 0 तो कांस्टेंट equal to 0 अगर से है तो लाइन की इक्वेशन रहेगी क्या नहीं कांस्टेंट मतलब क्या समझो मैंने तुमको बोला ये ऐसा दिस वन 5 is equal to 0 तो कांस्टेंट इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है क्या नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या कंडीशन है इक्वेशन ये फॉर्म में रहना चाहिए ax plus by plus c equal to 0 provided both a comma b are not simultaneously equal to 0 इसका मतलब क्या है जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज अपन पहले a equal to 0 पुट अप करेंगे तो ये 0 हो गया लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी by plus c equal to 0 so yes it is the equation of line suppose b equal to 0
So we got the equation ax plus c equal to 0. It is again equation of line. But if both a comma b दोनों ही अगर से 0 ही नहीं तो फिर बचेगा क्या c equal to 0. तो c equal to 0 इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या नहीं है. कोई भी कांस्टेंट इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ लाइन रहेंगे क्या नहीं. इसलिए अपन ने बाजू में कंडीशन क्या बोलने वाला है जैसा बाजूला काय म्हणला आपण की कुठली इक्वेशन जर ax by c equal to 0 या फॉर्म मध्ये असतील आणि त्यामध्ये महत्त्वाचं काय दोन्ही जे व्हेरिएबल्स आहे ए बी सॉरी कॉन्स्टंट आहे ते आर नॉट सायमल्टेनियसली इक्वल टू 0. एखाद्या वेळेस एक असतील तर याला इक्वेशन अप्लाय सांगता येईल याला इक्वेशन अप्लाय सांगता येईल पण दोन्ही जर इक्वल टू 0 असेल तर आपल्याला काय भेटणार फक्त कॉन्स्टंट इक्वल टू 0 तर त्याला इक्वेशन अप्लाय म्हणता येणार. तर दिस फॉर्म इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. This form is said to be the general equation of line or it is also called as linear equation in two variables. Linear क्यों तो याद रखो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं दो है x y ये क्या है इसके वेरिएबल्स है a b c आर द कांस्टेंट ऑफ दैट वन. देखो मैथमेटिक्स के लोग बहुत होशियार है उन्होंने क्या किया पूरे एबीसीडी को दो पार्ट में डिवाइड किया. जैसे कि लास्ट के जो जनरली टर्म्स है w x y z these terms are regarded as a one minute some student getting joining here. Okay. तो आज आपण मॅथमॅटिक्स चे जे काय लोक असतील ते हुशार आहे त्यांनी काय केलं पूर्ण एबीसीडी ला जे 26 अल्फाबेट्स आहे त्याला त्यांनी काय केलं दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. म्हणजे w x y z हे जनरली जर आला तर दे आर सेड टू बी द फंक्शन्स किंवा व्हेरिएबल्स and small a b small c स्टार्टिंग के जो कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c स्टार्टिंग के जो लेटर्स है उसको क्या बोलेंगे अपन मैथमेटिक्स में कांस्टेंट. तो इसमें ये जो है ax by c equal to 0 में small a small b small c ये क्या है इनके कांस्टेंट्स है और x y क्या है इसके वेरिएबल्स है. तो जैसे कि ये इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं there are two variables in that one so it is said to be the linear equation. linear क्यों तो ये जो वेरिएबल्स के पावर में क्या है x का पावर 1 है y का पावर 1 है. तो इट इज सेड टू बी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. कितने वेरिएबल्स है x और y. इट इज सेड टू बी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आल्सो. देखो नेक्स्ट टाइम a इक्वल टू 0 करेंगे तो अपने को मिलेगा by c इक्वल टू 0. तो ये फिर से क्या है लीनियर इक्वेशन मगर कितने वेरिएबल में वन वेरिएबल में. तो वेरिएबल कौन है y और इसका पावर कितना है 1 है. तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगेन अगर इसमें b इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा ax c इक्वल टू 0. इसमें वेरिएबल क्या है x इसके पावर में कितना है 1. तो इट इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स ओनली वन वेरिएबल्स. और यहाँ तो है ही नहीं वेरिएबल्स x y एब्सेंट है सिर्फ कांस्टेंट इक्वल टू 0 तो ये लाइन की इक्वेशन नहीं है. ठीक है. तो इन शॉर्ट क्या समझ में है हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में कि कोई भी इक्वेशन अगर से ये फॉर्म में रहती होंगी ऐसे भी तुम ले सकते हैं इसमें ax by c इक्वल टू 0. तो ये लाइन को हम क्या बोलेंगे और बाजू में क्या a comma b आर बोथ दोनों भी आर बोथ नॉट a comma b आर बोथ नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0. वन बाय वन रहेंगे तो चलेगा मगर दोनों भी एक साथ 0 नहीं होना चाहिए. दोनों एक साथ 0 हो गए तो वेरिएबल्स खत्म हो गए सिर्फ क्या बचा अंदर कांस्टेंट और कांस्टेंट इक्वल टू 0 मतलब लाइन की इक्वेशन रहेगी क्या नहीं. तो अब उसके बाद एक फॉर्म आ गया जनरल फॉर्म ऑफ लाइन. उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमको 12वीं में यूज होगा केस ऑफ सेट टाइम में इससे लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे. देखो स्लोप तुम्हारे पास तीसरी बार आ रहा स्लोप ऑफ लाइन कौन सा ax by c इक्वल टू 0 इसका स्लोप तुम कैसे निकालेंगे एकदम सिंपल. कभी भी क्या करेंगे यहाँ पे ये जो लाइन में है y का टर्म हमेशा यहाँ पे रखो by इज इक्वल टू x पर टर्म को लेके जाओ माइनस ax माइनस c दोनों को लेके चलेंगे. तो y इज इक्वल टू माइनस ये की जो मल्टीप्लिकेशन में इनके डिवीजन में जाएगा माइनस a by bx माइनस c by. अब इसको हम कंपेयर करेंगे कौन सी इक्वेशन से अपनी यू हैव टू कंपेयर द इक्वेशन विद द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करो. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस t. इससे हम इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे. तो कंपेयर क्या कैसे करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा mx प्लस t. तो कंपेयर करो y की जगह पे y ओके यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस a by b
और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है m, तो m इज इक्वल टू, ठीक है लोगों को कंपेयर करके लेंगे तो y का कोएफिशिएंट सेम है दो का आंसर, x का कोएफिशिएंट माइनस a बाई बी, x का कोएफिशिएंट m, तो इसलिए देखो m इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस a बाई, आफ्टर कंपेयरिंग दिस वन coefficient of x is a minus a by b, coefficient of x is a m, so m is equal to what minus a by b, और slope y इंटरसेप्ट c कितना है माइनस, अपने को क्या होना सिर्फ स्लोप, स्लोप मतलब क्या m, तो m is equal to कितना है माइनस a by, तो इस तरीके से तुम कौन सी भी लाइन का स्लोप बहुत फास्ट निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने तुमको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लगाया कि मैंने तुमको बोला ये स्ट्रेट स्लोप बोलो 2x + 3y + 5 = 0, तो तुमने देखो बोले कौन इसमें फार्मूला क्या है स्लोप का m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, इसमें रखने का कंपेयर इट, a मतलब कितना कोएफिशिएंट ऑफ x, b मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप कितना आ गया माइनस 2/3, बस ये फार्मूला याद रखो उसका स्लोप का, m इज इक्वल टू क्या माइनस a बाई बी, ये लाइन का सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है तो उसका स्लोप का फार्मूला कितना है m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, ऐसा समझो, तो वेरी सिंपल कंसेप्ट इज दैट, कैसे निकाला समझ में आएगा, या फिर देखो तुम इसका ये फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको क्या दिया था इक्वेशन 2x + 3y + 5u = 0, तो क्या करो y के कोएफिशिएंट को इधर ही रखने का 3y, x वाला टर्म उधर जाके माइनस का हो गया, कांस्टेंट उधर जाके माइनस हो गया, तो y = -2/3x - 5/3, अब इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, अगेन यू हैव टू कंपेयर विद द mx + c, कंपेयर करके ला तो m इज इक्वल टू क्या बचा -2/3, आया वही स्लोप आया, m इज इक्वल टू कितना -2/3, x का कोएफिशिएंट -2/3, x का कोएफिशिएंट m, तो व्हाट इज द स्लोप m इज इक्वल टू -2/3, तो इट इज द मेथड टू फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द कौन से लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में रहेगा, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में रहेगा, तो इसका स्लोप अपन ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर शॉर्ट में तुम याद रखो फार्मूला हमेशा कोई भी इसका स्लोप निकालना है तो m इज इक्वल टू माइनस a बाई b, ठीक है, और एक इक्वेशन एग्जांपल है तो समझो 5x - 3y + 10 = 0, तो अब इसका स्लोप क्या आएगा, इसका बोलोगे दिस व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू -a, तो ये कितना हो गया 5, b मतलब कितना है -3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, स्लोप कितना मिलेगा 5/3, तो ऐसा याद रखना जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप और जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ लाइन इज द रिवर्स ऑफ दिस टाइप m इज इक्वल टू -a/b, ये नजर नहीं आ रहा है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना मिला 5/3, ठीक है, तो ये है इसका स्लोप जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन का, तो आया समझ में, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इज नथिंग बट, देखो अभी तक के तुमको जो स्लोप है, स्लोप के बारे में अगर से बताएंगे तो अपन तुमको स्लोप अभी तक 4 मेथड से अभी तक निकाल सकते हैं, तुम स्लोप 4 मेथड से मतलब कैसा, पहला स्लोप तुम निकाल सकते हैं तुम्हारे 10 के नॉलेज में, पहले स्लोप का फार्मूला अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है तो फार्मूला क्या है, स्लोप इज नथिंग बट y - y1, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है तुम्हारे 10 के हिसाब से, दूसरा फार्मूला स्लोप इज नथिंग बट m इज इक्वल टू क्या फार्मूला tan थीटा, ये दूसरा, अगर से कोई लाइन का एंगल बताए, इंक्लिनेशन बताए तो उसका टेंजेंट लेकर क्या निकालेंगे इसका स्लोप, दूसरा मेथड, तीसरा स्लोप तुम निकाल सकते हैं, थर्ड फार्मूला स्लोप का निकालेगा क्या है, इससे निकाल सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y = mx + c से कंपेयर करेंगे अपन, लाइन को ये फॉर्म में लाएंगे, कंपेयर करने के बाद तुमको क्या मिलेगा m, मतलब क्या मिलेगा स्लोप, और चौथा फार्मूला स्लोप का भी तुम निकाले फार्मूला स्लोप का, चौथा फार्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला -a/b, तो ऐसे 4 फार्मूले, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से अपन स्लोप निकालेंगे, लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है स्लोप बोला तो ये फार्मूला यूज करेंगे, लाइन का अगर से इंक्लिनेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि देखो ऐसा फॉर एग्जांपल फिगर से होता था, ये देखो अब ये लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है, यहाँ पे a of x1, y1 और b of x2, y, ऐसे दो पॉइंट में से पास है, तो ये टाइम पे ये फॉर्मूला, दूसरा केस, दूसरी केस क्या है कि समझो ये लाइन इंक्लाइन हो रही है इसके साथ और कुछ एंगल तैयार करी होगी,
तो tan थीटा लेके इसका तुम क्या निकाल सकते हो, स्लोप। दूसरा केस, तीसरी केस पे क्या है, ये तीसरी केस, थर्ड केस, लाइन अगर से यहाँ पे टच हो रही होंगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन को ये फॉर्म में लाओ, कंपेयर करो, m मिलेगा। और चौथा क्या है, चौथा स्लोप क्या, लाइन अगर से ये फॉर्म में रहेगी, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लाइन अगर से नजर आ रहा है, यस, लाइन अगर से ये फॉर्म में रहेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये नजर नहीं आ रहा है या चिंता रहेगी हम, लाइन अगर से ये फॉर्म में रहेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तब इस टाइम पे इसका स्लोप कितना रहेगा, एम इज इक्वल टू माइनस। तो चारों अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग स्लोप के फार्मूला यूज करेंगे, जो दिया वाला है उसके हिसाब से फार्मूला यूज करेंगे। ये दिया वाला है, 2 पॉइंट दिया वाले है तो ये फार्मूला, इंक्लिनेशन मालूम है तो ये फार्मूला, वाई इंटरसेप्ट मालूम है तो ये फार्मूला, और अगर से जनरल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला n इज इक्वल टू माइनस ए बाई। तो इस तरीके से अपने पास स्लोप के कितने फार्मूले आएंगे, टोटल 4 फार्मूले आएंगे। ठीक है, चलो। तो अब नेक्स्ट क्या है, इसमें स्लोप तो निकालने का फार्मूला मालूम हो गया है ना। अब समझो मैंने तुमको बोला नेक्स्ट वन इज ये फॉर्मूला हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब किसी ने तुमको इसका पूछा कि इसके इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या है, जनरल फॉर्म का स्लोप तो तुमको मालूम होगा, स्लोप का फॉर्मूला कितना है, m इज इक्वल टू माइनस ए लाइन। अब अगर हमने तुमको पूछा कि इसका इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसका, इस समझो मैंने तुमको पूछा इसका इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ये लाइन ax प्लस by प्लस, अब देखो या तो कोई कैपिटल ले सकता है, कोई स्मॉल ले सकता है, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कांस्टेंट जो है ये एबीसी, तुम कांस्टेंट जो है कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, तुम्हारे दिल पे है। ऐसा नहीं कि सबने कैपिटल लिया मतलब कैपिटल, सर ने स्मॉल लिया मतलब स्मॉल, ऐसा कुछ भी नहीं। इसे तुम्हाला काय घेता येईल तुमचं म्हणावं। ठीक आहे, आता इंटरसेप्ट ऑफ लाइन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, इंटरसेप्टचा कन्सेप्ट पुन्हा सांगायची गरज नाही, पहिले लेक्चर पासून सांगायला। इंटरसेप्ट म्हणजे एक बार देख लो, लाइन टचिंग द एक्स एक्सिस इट गॉट्स एक्स इंटरसेप्ट, line touching y axis you got y intercept, and line touching both the axis you got double intercept। तो ये कंसेप्ट तुमको मालूम है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन का अगर से इंटरसेप्ट निकालने का है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, देखो एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इसका अपन ए बीच एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट सबको मालूम है, लाइन अगर से एक्स इंटरसेप्ट है इसका मतलब लाइन किसको टच है, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को अगर लाइन टच है तो ऑटोमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या आता, y कोऑर्डिनेट क्या आता, 0। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालते समय y का कोऑर्डिनेट क्या पड़ गया, 0। y अगर से 0 हो गया तो b into 0 0 हो गया, तो फिर क्या बचा, ax plus c equal to 0। और फिर फॉर एक्स इंटरसेप्ट लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या आना पड़ेगा, y इक्वल टू 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमको, ax plus c इक्वल टू 0। तो ax इज इक्वल टू माइनस c, तो x इज इक्वल टू माइनस c बाय a। इट इज योर x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। लाइन का किसी ने x इंटरसेप्ट पूछा तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस c बाय a। सिमिलरली किसी ने अगर से y इंटरसेप्ट पूछा तो फॉर y इंटरसेप्ट क्या करना पड़ेगा तुमको, सॉरी intercept for y intercept, for y intercept क्या करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पुट अप करने का पड़ेगा। ये लाइन में x इक्वल टू 0 अगर से पुट अप कर लिया तो क्या बचा, फिर by प्लस c इक्वल टू 0, by इक्वल टू माइनस c, y इज इक्वल टू माइनस c बाय c। तो ये क्या होगा, y इंटरसेप्ट ऑफ दैट वन। उसकी काउंटर एग्जांपल, जैसे कि मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा यहाँ से, फॉर एग्जांपल एक लाइन है 2x प्लस 3y दिख रहा है, आई थिंक सर वैसे लिखेंगे अपन, ठीक है, उसको मिटाएंगे अपन। समझो मैंने तुमको जनरल एग्जांपल इसके लिए, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y प्लस
3 इक्वल टू 0। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? सबसे पहले जनरल फॉर्म में है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में। क्यों जनरल फॉर्म में? ये इक्वेशन को तुम जनरल फॉर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कितने हैं? दो। इसका पावर कितना है? 1। इसका पावर कितना है? 1। so it is the linear equation in how many variables? Two variables. Which variables are there? X and y is there. So this is said to be the linear equation in two variables are there. तो इसका x इंटरसेप्ट तुमको अगर से मैंने पूछा तो इसका x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? तुम सिंपली डायरेक्ट बोल सकते हो। x इंटरसेप्ट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। क्या बचा खाली? 2x plus 3 equal to 0। तो 2x is equal to कितना आ गया? -3। x is equal to कितना है? -3। देखो डायरेक्ट हमारा फार्मूला x इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या था? वो x इंटरसेप्ट का फार्मूला था x is equal to -c/a। फार्मूला याद रखेंगे तो ये भी सिंपल जाएगा। माइनस एडिटिव यहाँ पे c कंपेयर करो, c कितना है? 3 और a कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब कितना? ऐसे भी निकाल सकते हो फार्मूले से या फिर तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यस, इसका y इंटरसेप्ट क्या रहेगा? व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दैट वन? सो वेरी सिंपल वन। y इंटरसेप्ट मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। तो क्या बचा? 5y plus 3 equal to 0। So 5y is equal to -3, y is equal to -3/1। So it is your y intercept of a line। तो इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो? इसका x इंटरसेप्ट और क्या निकाल सकते हो? इसका y इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। ठीक, चलो फिर अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ओके, आप नेक्स्ट फॉर्म है। ओके, सो next is the reduction of general form to the very form of reduction right? The general form मुझे बोला था right? First next will be the reduction of general form to the standard form। reduction of general form to the standard form। reduction of general form क्या करेंगे? to standard form, to standard form, to standard form। इसमें दो ही फॉर्म ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि जनरल इक्वेशन जो है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन जो है उसका हम फैमिलिटेशन करेंगे। So it is nothing but reduction of general form to the uniform standard form is there। So here now what we have done here, तो इसमें जनरली दो ही फॉर्म ज्यादातर है कि कोई भी जनरल इक्वेशन को तुम एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जनरली, या फिर तुम्हारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल फॉर्म में भी है मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर देखेंगे। ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ हियर, सी हियर नाउ। तो पहला है हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको रिड्यूस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे मैंने अभी बताया तुमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे कि तुमको अभी मैंने कैसे बताया, समझो लाइन अगर ऐसी ax plus by plus c equal to 0, तो इसको तुम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तभी बताया मैंने तुमको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है तुमको? क्या फॉर्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये फॉर्मूला y is equal to mx plus c में तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो। रिडक्शन मतलब क्या? कोई भी जनरल फॉर्म को रिडक्शन मतलब वो फॉर्म में लेके आएगा। कौन से? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से थे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था, नॉर्मल फॉर्म था। जनरली तीनों में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तीनों में भी सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है, वो देखो। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बताया तुमको ax plus by plus c equal to 0 है, तो by plus c equal to by is equal to minus ax minus c, दोनों को लेके y is equal to क्या आ गया? minus a by bx minus c by मल्टीप्लिकेशन में दोनों की डिवीजन में आएगा, तो ये तुम्हारे फॉर्म में आ गया y is equal to mx plus c। तो इसका मतलब हम कोई भी जनरल इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ लाइन को क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y is equal to mx plus c के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होगा पहला।
दूसरा, तो समझो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन तुमको ऐसे दी हुई है, तो इसका कन्वर्जन हम इसको डबल इंटरसेप्ट में भी कर सकते हैं। तो डबल इंटरसेप्ट में करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुमको यहाँ पे, उसका फॉर्मूला मालूम होना। सेकंड थिंग, ये नजर आ रहा है तुम्हारे को अच्छे यहाँ पे लाइन आता है। सेकंड फॉर्म इज, ये दो ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो सबसे पहले तुमको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को फॉर्मूला मालूम होना। देखिए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डबल इंटरसेप्ट? x by a plus y by b is equal to 1, इसमें कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला सबको मालूम है, नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला सबको मालूम है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डबल इंटरसेप्ट? x by a plus y by b is equal to 1, इसको कन्वर्ट करने का है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, जैसे कि इक्वेशन ax plus by plus c equal to c, so what we can say that डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला लाने का है तो कैसा लाएंगे, बोलो कैसे करेंगे इसको। हम सबसे पहले ax plus by इक्वल टू प्लस का c उधर गया तो कितना मिला, माइनस का c। तो तुमको पहले डबल इंटरसेप्ट का फार्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखूंगा ऊपर फार्मूला, क्या लिखा है, x by a plus y by b is equal to 1। तो डबल इंटरसेप्ट में लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होना, 1। 1 होने के लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट प्लस c उधर जाके क्या हो गया, माइनस c। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1 होना तो यहाँ पे कितना है, माइनस c। इसका मतलब सबको हम कैसे डिवाइड करेंगे, माइनस c से। माइनस c से डिवाइड करने पर यहाँ पे कितना आएगा, 1। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस c, you got here ax upon minus c by upon minus c is equal to minus c upon minus c। So what we got here, ax upon minus c plus by upon minus c by minus c by। अब तो ये 1 तो हो गया यहाँ पर। अब सेकंड थिंग में क्या देखेंगे तुम, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट कितना है, 1। दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a और y का कोएफिशिएंट b। इसका मतलब तुमको अगर से डबल इंटरसेप्ट में लाने का है तो इनके कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 1 1 करना पड़ेगा। तो इनके कोएफिशिएंट 1 कब आएंगे, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय न्यूमरेटर बाय a, डिनोमिनेटर बाय a, डिवाइड न्यूमरेटर बाय b, डिनोमिनेटर बाय b। ऐसा करने से तुमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ बताऊंगा, ये नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, इनका देखेंगे अपन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन देखो फिर से यहाँ पर, ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है। तो कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड न्यूमरेटर बाय a, डिनोमिनेटर बाय a, प्लस डिवाइड न्यूमरेटर बाय b, डिनोमिनेटर बाय b इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से ये a कैंसिल, b भी कैंसिल, तो क्या इक्वेशन, x अपॉन माइनस सी बाय a, y अपॉन माइनस सी बाय b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या होगा, x इंटरसेप्ट, और ये तुम्हारा क्या होगा, y। आगे बोलेंगे नहीं, अब देखो फॉर्म में आएगा नहीं, ये x बाय a, ये मतलब ये तुम्हारा स्मॉल a, ये x इंटरसेप्ट, y बाय b मतलब तुम्हारा y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट कर आया क्या, यस, इज दैट क्लियर। एक एग्जांपल लगाऊं इसकी, बोलो जल्दी, आया होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यस, समबडी अ प्रॉब्लम इन दैट वन, समझा क्या, यस टेल मी नाउ, यस इज दैट क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम, ओके। चलो फिर आगे देखो, एग्जांपल फिर भी तुम्हारे लिए बताता है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, समझो ये मेथड से तुम अगर से जाएंगे, समझो तुमको मैंने एक इक्वेशन दे दिया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मैंने तुमको बोला कि इसको कन्वर्ट करो, क्या में कन्वर्ट करो, इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट या फिर रिड्यूस करो, फिर रिडक्शन करो इसका। तो कैसे रिडक्शन करेंगे, वेरी सिंपल, हाउ डू वी डू दैट वन। तो सबसे पहले कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 10 वहां गया तो कितना मिला, माइनस का 10।
उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट कितना होना चाहिए 1, इसलिए हम सबको क्या करेंगे -10 से डिवाइड करेंगे, -10 -10 अपॉन -10, ऐसे करने से ये कितना आ गया 2x अपॉन -10 cy अपॉन -10 इज इक्वल टू 1। पहला काम 1 लाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या याद रखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y ये हमेशा कितना रहते हैं 1, मगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट में 2 है, तो क्या करेंगे ये टर्म में डिवाइड न्यूमरेटर बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ये कंसेप्ट ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर बाय 3 एंड डिनोमिनेटर बाय 3 इज इक्वल टू, तो टेढ़ा होगा क्या, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर बाय 2 डिनोमिनेटर बाय 2 प्लस डिवाइड न्यूमरेटर बाय 3 एंड डिनोमिनेटर बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। So finally we got here 2 to get the answer, x upon minus का 5 y upon minus 10 by 3 is equal to कितना, तो ये तुम्हारे पास कौन सा फॉर्म में आ गया, इट इज नथिंग बट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे a मतलब -5 और b मतलब कितना आ गया -10 by 3, ये मतलब x इंटरसेप्ट और ये कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया समझ में, इज दैट क्लियर, यस बोलो आया क्या समझ में। चलो फिर आगे जाएंगे अब नेक्स्ट बीट की तरफ। कंडीशन फॉर कॉन्फिडेंट ऑफ लाइन्स, कंडीशन फॉर कॉन्फिडेंट ऑफ लाइन्स, नेक्स्ट वन इज द कंडीशन फॉर कॉन्फिडेंट ऑफ लाइन्स, कॉन्फिडेंट ऑफ लाइन्स। वैसा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बीट हो गया, अब यहाँ से अपन 12 स्टार्ट कर सकते फ्रॉम मंडे, उद्या से दिवस फक्त सुट्टी राहील आपल्याला, संडे असल्यामुळे तुम्हाला काम, पण मंडे पासून 12वीचा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाईन्स सुरू होईल। जेवढे लेक्चर्स तुम्हाला पाठवलेले आहेत तेवढे लेक्चर्स पहा 11वीचे बेसिकचे, तर तुम्हाला पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये मन लागेल आणि एवढी गॅरंटी सांगतो की तुम्हाला 100% पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाईन सिंपल जाईल जर तुम्ही हे लेक्चर्स माझी पाहिले असेल तर। 4-5 लेक्चर मी का घेतलं, कारण हे कळल्याशिवाय ते तुम्हाला कळणार नाही, ठीक आहे। चलो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट लाइन्स मतलब समझो 3 लाइन्स अपने को ax plus by plus c1 equal to 0, एक लाइन है a2x plus b2y plus c2 equal to 0 और तीसरी कंडीशन ac plus bty plus c3 equal to 0। So if now these are the 3 lines, एक लाइन ac, एक लाइन ac, एक लाइन ac, तो जब तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट में से पास होते हैं दिस वन, so these lines are said to be the concurrent lines। If these 3 lines are passing through one common point, then these lines are said to be the concurrent lines। तो कंडीशन फॉर concurrent lines कब है, जब कोई 3 लाइंस एक कॉमन पॉइंट में से पास होंगे तो उनको क्या बोलेंगे अपन concurrent lines। तो उस टाइम पे क्या है, सिर्फ कंडीशन क्या है, इनका जो डिटरमिनेंट है तीनों लाइन का कोएफिशिएंट का इक्वल टू कितना आएगा 0, मतलब x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1, देन x का कोएफिशिएंट a2, इसका b2, इसका c2, इसका a3, b3 and then c3। If that is determinant equal to 0, जब 3 लाइंस तुम कैसे देंगे, तो 3 लाइन में तुम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट्स देंगे, ये तो याद रखें। ओके दिस वन, तो ये तीनों के कोएफिशिएंट a1, b1, c1, xy के भी और कांस्टेंट भी a2, b2, c2, a3, b3, c3, सब कांस्टेंट का डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से 0 है तो ये लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है, और अगर से लाइन डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो लाइंस आर डज नॉट कॉन्करेंट, मतलब वो कॉमन पॉइंट में से पास नहीं है। डिटरमिनेंट 0 आया तो तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट में से पास है, इसका मतलब वो कॉन्करेंट है, और अगर से डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब वो लाइन कॉन्करेंट नहीं है, वो कॉमन पॉइंट में से पास